Now are we live? Good afternoon, everyone, and welcome to yet another webinar by School of Scholars. This time, I bring to you a very, very important topic. Something we all are curious about is our future. We all are very interested in knowing कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं रहूंगी कहाँ या मैं रहूंगा कहाँ. Specifically, students, the 10th graders, the 12th graders, they're very, very interested in knowing about their future. But do we have a say in it? या फिर हमारा फ्यूचर सिर्फ तारों से तारों पे और अपने हाथ की लकीरों पे डिपेंड करता है? Let us think about it and let us find out whether I get a say in my future and how can I design my own future. And इसके लिए I am very honored to sit across a very prominent speaker and motivator, Avinash Sauji sir. We welcome you, sir. Sir is a prominent speaker. He has 35 years of experience in imparting health and education to rural, tribal, and urban segments of society. And Sir has delivered more than 1,000 speeches, and he has been called at various educational, government, and institutions, medical bodies, national integrated medical associations, senior citizens, you name it, and Sir has conducted workshops and he has motivated lives of innumerable people. And most important of them are the students. Sir has also talked about, Sir usually talks about how to prepare ourselves. You know, the success, the life, the vision of our own life is one of the most important things Sir excels into. Sir also has a fully equipped training center, which is called as Prayas Institute of Human Excellence and Happiness at Amravati. Sir is a well-known counselor into, you know, parenting, preventive and promotive health, yoga, career, marital, then childhood, education, everything. And Sir has also started a mission which is called as Plastic Free Amravati. And he works towards it, and let us all hope that we all will also be a part of your goal, sir. And from now, I move on to, I hand over this to Sir. Let us see how and what we can do to find out where will I be in next 20 years. Over to you, sir. Thank you. So, I'm happy to be here with the School of Scholars again. And we will be talking about where I will be after 20 years. I will be sharing my screen. So I just want to confirm that I am audible and my screen is visible. Yes, sir, you're audible and your screen's visible. Okay, okay. So we can move ahead then. Yes, sir. So basically हम लोग बोलते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना आज जिंदगी के सभी क्षेत्रों में विजन डॉक्यूमेंट काफी इम्पोर्टेंट बात हो गई है. कारपोरेट सभी कंपनीज के पास विजन डॉक्यूमेंट रहता है, गवर्नमेंट के पास है, स्कूल्स के पास है. दिक्कत यह है कि इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर आवर ओन पर्सनल लाइफ. दैट इज द मेजर पार्ट. आज हम लोग ये सीखेंगे कि अपने जिंदगी के लिए विजन डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें. मे बी इट इज applicable to the students, to the parents, or to the professional teachers, or everyone. No issue. Dr. APJ Abdul Kalam has actually given that concept of India Vision 2020 and where the India will be after 20 years. Okay. Now the same concept we can apply for our own life.
कि where I will be after 20 years. So this year is the year 2020, and when where I will be in year 2040. That now we will try to prepare a vision document for our own life. So I will suggest the viewers to have a notepad and pen with them, because I am going to give you a frame which will help you in developing your vision document. तो ये अगर नोटपैड पेन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पेरेंट्स हैं तो अपने लिए, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो अपने लाइफ के लिए कर सकते हैं। सो बेसिकली हम जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, पूरे एजुकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट आवर पर्सनालिटी शुड गेट डेवलप्ड, ओके। और वो डेवलपमेंट होना चाहिए तो ये 4 डायमेंशंस में होना चाहिए। One is of course the physical health, another is the mental or intellectual, what you can say, development, third is the social or the emotional, and fourth is the spiritual. These are the 4 dimensions of our personality. These are the 4 dimensions of our health also in one way. तो हमको ये देखना होगा कि हमको 2040 में खाली करियर के बारे में नहीं सोचना है। बहुत बार हम विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो करियर की बात करते हैं। करियर मतलब लाइवलीहुड, कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, ओके। दैट इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप 24 घंटे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर नहीं रहने वाले, या उसके साथ साथ बाकी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जीवन में, जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो ये 4 डायमेंशंस के बारे में हम लोग सोचने वाले हैं आज। खास करके 2 पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू introduce you. One is the holistic perspective, so not only related with the career or the currency, what you can say, the goals, but the other dimensions of our life which are equally important or maybe more important than just the career. और दूसरी बात जो है, हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचेंगे कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, नहीं तो 10वीं हो गया कि 12वीं में कहाँ करना है, 12वीं होने के बाद कौन से कॉलेज जाना है। इतना ही हम लोग सोचते हैं। हम लोग थोड़ा सा लंबा सोचने वाले हैं आज कि 20 साल के बाद हम कहाँ रहने वाले हैं। सो इट्स अ लाइफ, व्हाट कैन से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और दूसरा जो है वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो हम लोग एक आपके नोटपैड के ऊपर ऐसे 3 कॉलम बनाई है, ओके। फर्स्ट इज द लिस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट 1 पैरामीटर, फिर आज हम कहाँ हैं 2020 में, और 2040 में हम लोग कहाँ पहुंचने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसा एक विजन डॉक्यूमेंट हम अपने लिए तैयार करने जाएंगे अभी, ओके। तो पहला फैक्टर लिखिए, आपका एज। मुझे बताया गया है कि ज्यादातर 8 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चे शायद होंगे इस वेबिनार में, या उनके पेरेंट्स। सो अप्रोक्सीमेटली 15 प्लस माइनस आपका एज होगा अभी, ऐसा हम पकड़ लेते। जो भी आपका एज है वो यहाँ लिख दीजिए, आपका एज अभी। दिस इज अ सैंपल 1 कि कैसे ये तैयार करना है विजन डॉक्यूमेंट। उसका एक सैंपल मैं आपके सामने इस स्लाइड्स के द्वारा पेश कर रहा हूँ। आप अपने लिए तैयार करना है। पेरेंट्स से चाहे तो अपने लिए तैयार कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इट इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल, नो इश्यू, whosoever you may be। पेरेंट्स से तो अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, चाहे तो हर बच्चे के लिए अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। आप अपने लिए अभी करके देखिए, और फिर यह होमवर्क करके फिर अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो आपका जो भी एज है, आज यहाँ का एज लिखिए। 2040 में आपका जो एज होएगा वो यहाँ लिख दीजिए, ओके। नेचुरली अभी 15 है तो तब 35 होगा। सेकंड फैक्टर इज वेदर यू आर लिविंग और नॉन लिविंग। ऑफकोर्स हम लोग जिंदा है, तो यस वी आर लिविंग, ओके। व्हाट इज आवर विश फॉर ईयर 2040? मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग ये चाहते होंगे कि मैं जिंदा रहूंगा 2040 में भी। शायद ही कोई ऐसी इच्छा रखता होगा कि नहीं भाई बहुत हो गया, 35 साल लेने बहुत हो गई, उससे पहले ही चले जाना है, बाय बाय कर देना है, ऐसा तो शायद ही कोई होगा। तो हमारा टारगेट है कि हमको 2040 में भी जिंदा रहना है, ओके। जिंदा रहना है, ये आज जिंदा है हम लोग, we are living and we will be living in year 2040, this is our assumption,
ओके, दिस इज नॉट आवर गोल। तो हमको जो हमारा विश है उसको गोल में कन्वर्ट करना होता है, then only it can happen, okay, with everyone, otherwise it is difficult। हम अगर ये सोचेंगे कि आज ठीक है, I am alive and I will be alive in year 2040, so this is the assumption, this may not be correct for everyone, okay। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरा सब्जेक्ट भी है, दैट इज माय सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्टडीज, कि हाउ टू लिव लॉन्गर एंड यंगर, द लाइफस्टाइल एंड द हेल्थ। सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट दैट कि आज जो भी एक व्हाट कैन से द कॉजेस ऑफ डेथ जो है, मोर्टेलिटी जिसको हम बोलते हैं पूरी दुनिया की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है हार्ट अटैक एंड अलाइड इलनेसेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग्स। सेकंड नंबर पे आता है कैंसर, और फिर बाकी सब चीजें बाद में आती है। तो आज ये हुआ है कि ये सब बीमारियां होने का एज लोअर डाउन हो गया है। मैं जब नागपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था ड्यूरिंग 1978 to 83, तब ये सब बीमारियां 50 प्लस 60 प्लस वाली थी। उसके बाद धीरे धीरे वो 50 प्लस वाली, 40 प्लस वाली, अभी तो 30 प्लस वाली हो गई। और अभी जो बच्चे हैं 15 साल के, वो जब 2040 में जाएंगे तो शायद ये 20 प्लस वाली बीमारियां हो जाएगी ये सब। और फिर अगर कम उम्र में अगर ये बीमारियां हो जाती है तो दे आर मोर सीवियर, मोर व्हाट कैन से फेटल। सो हमको अगर अपने आप को जिंदा रखना है 2040 में भी, एंड दैट इज व्हाट आवर व्हाट कैन से गोल इज, तो फिर हमको कुछ चीजें आज से ही सोचनी होगी, आज से ही कुछ चीजें करनी होगी। चाहे वो गलत चीजें हम कर रहे हो तो बंद करनी होगी, या सही चीजें करना शुरू करनी होगी। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ही थोड़ा सा। मगर जैसे आज कोरोना के कारण शायद हम सभी लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, और ये पता चला है कि हेल्थ इज अवर मोस्ट अल्टीमेट प्रायोरिटी जिसको हम बोलेंगे। आज कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद है, हमारे कॉलेजेस बंद है, सब चीजें हम लोगों ने रोक के रखी है, जो शायद इसके पहले कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कभी, कि मंदिर मस्जिद से लेके तो सब चीजें बंद रह सकती है, महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, और पूरे दुनिया रुक जा सकती है, which probably we have never thought of before। तो हमको शायद ये उतनी प्रायोरिटी जिसको हम बोलेंगे, जैसे आज कोरोना के वजह से हेल्थ हैज बिकम द प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, टू द गवर्नमेंट्स, टू द ग्लोबल लेवल, जो आज तक की नहीं थी शायद। तो हमको उस बारे में फिर सोचना होगा। आज हमको थोड़ा सा जिंदा रहना है, तो आज सब लोग लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, ओके, लाइफस्टाइल कैसे सुधार ले। तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी। शायद हमारी फूड हैबिट्स जो गलत हो रही है अभी आज, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, और शायद हमको थोड़ा सा जिसको जंक फूड बोलते हैं वो सब टालना होगा। जो हेल्दी फूड है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऐसे फूड हमको ज्यादा प्रेफर करना होगा। सेकंड पार्ट इज द फिजिकल एक्टिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज ऑलवेज मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ। आज पढ़े लिखे लोगों के जीवन में से फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म हो रही है, तो उसको फिर से हमको जगाना होगा, फिर से करते रहना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें चाहे योगा है, चाहे कोई एक्सरसाइज है, कुछ ना कुछ तो भी स्पोर्ट्स है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड पार्ट कुड बी रिलेटेड विथ अवर स्ट्रेस। जो आज तनाव आता है अलग अलग कारणों से, स्ट्रेस रहता है, चाहे वो बच्चों में है चाहे बड़ों में है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस लेवल के साथ कैसे डील करें, अननेसेसरी स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, लाइफ को सिंपल कैसे बनाया जाए, rather than making it more complicated and more stressful. It is much easier to live in a simple way and a healthier way. Okay. So उस बारे में शायद हमको सोचना होगा, और फिर कुछ चीजें हमको अपने जीवन में आज से बदलनी होगी। That is the important part. आज शायद वो आज के हमारे इस सब्जेक्ट के डोमेन में वो डिटेल्स नहीं आते हैं, but if you are interested then definitely you can go to our YouTube चैनल प्रयास अमरावती करके है। उसमें आपको कई सारे वीडियोस इस बारे में, डिटेल्स के बारे में, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, डायबिटीज को कैसे टाला जा सकता, हार्ट अटैक को कैसे टाला जा सकता, और ऐसे कई सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो
These are the two things, age and living or non-living. Third thing is of course the qualification. आज का हमारा क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखिए 2020s में, शायद आप 8, 9, 10, 12 जो भी कुछ है आप है. व्हाट इज यूर गोल इन ईयर 2040 वो लिखिए वहां कि आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा 2040s में. वॉट एवर यू थिंक टूडे, ओके, इट कुड चेंज, नो इश्यू. आज जो हम सोचते हैं वही सब होने होगा या उसी तरीके से होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. ये तो हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, रेगुलरली उसको अपडेट करना होता है. खाली ये बात जो है वो जैसे हम आए चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमको सामने बिठा करके वो जो स्क्रीन रहता है उसके ऊपर के वो नंबर्स और सिलेबस पढ़ने लगाते हैं. और फिर अगर हमको नहीं दिखती है आखिरी लाइन तो एक ग्लास हमारे सामने लेंस डाल देते हैं और पूछते हैं अभी क्लियर हो गया क्या. ठीक, तो ऐसा करके हमारा आंखों का नंबर निकाला जाता है. नंबर निकालना हो गया मतलब सब हो गया ऐसा नहीं होता है. उसके बाद हमको स्पेक्टेकल्स के दुकान में जाना होता है, वहां ऑर्डर देके पैसा खर्चा करके चश्मा बनवाना पड़ता है और वो लगाना पड़ता है. और हमारे सामने क्लियरिटी तब तक रहती है जब तक कि चश्मा आंखों के ऊपर है. एक बार चश्मा निकाल लिया फिर सब धुंधला हो जाता है. तो आज सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू इन दिस वेबिनार कि मैं अभी आपकी आंखों के सामने 2040 का लेंस लगा रहा हूँ और आपको पूछ रहा हूँ कि पढ़िए आपको क्या दिख रहा है. आपको जो दिखता है वो आपको लिखना है. अभी हो सकता है कि ये बाद में आपको बदल सकता है क्योंकि चश्मे का नंबर एक बार निकाल लिया तो जिंदगी भर चलता है ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू चेंज इट ईयरली, ट्वाइस ईयर बेसिस के ऊपर आपको चेंज करना होता है हमेशा. ओके, तो ये चेंज भी हो सकते जो आज हम लोग लिख रहे हो, मगर आज की शुरुआत में आज हमें जो लगता है वो आज यहाँ पर आ जाना चाहिए. सो क्वालिफिकेशन, ओके, इट कुड बी बीई, एमबीबीएस, एमडी, व्हाटएवर इट इज, आईएएस. आपकी नेम प्लेट क्या रहेगी? आज की नेम प्लेट आपकी क्या होगी? क्या यस राजू अमुक अमुक एसओएस स्कूल और 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड और व्हाटएवर इट इज. ओके, आपकी 2040 की नेम प्लेट क्या रहेगी वो आपको तैयार करनी है. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. अगर पेरेंट्स है सुन रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि दिस सिंपल थिंग कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ योर किड्स. ओके, हमारे बच्चों की नेम प्लेट क्या रहेगी 2040s में. ओके, नेम प्लेट में आपको मालूम है कुछ प्री फिक्स रहता है, कुछ पोस्ट फिक्स रहता है. प्री फिक्स में शायद हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, व्हाटएवर इट इज, इट कुड बी. पोस्ट फिक्स में क्या होएगा? आपका क्वालिफिकेशन आएगा शायद जो भी है, एमई, एमटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमसी, एमबीए, व्हाटएवर इट इज. ओके, उसके बाद शायद आपका डेसिग्नेशन आएगा. शायद हो सकता है कलेक्टर कोई डिस्ट्रिक्ट का हो 2040 में, या आईपीएस ऑफिसर हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, चाहे कोई कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो, मैनेजर हो, व्हाटएवर इट इज. ओके, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज आ सकता है शायद हमारा, कि हो सकता है कि बहुत प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, आर्टिस्ट है, इट कुड बी एनीथिंग, स्पोर्ट्समैन है. ओके, सो नेम प्लेट कंटेन ऑल दीज थिंग. तो ऐसी एक नेम प्लेट हमारी अपने जीवन के 2040 ईयर में जो होने वाली है वो बनाने की एक्सरसाइज एक करिए आप. और वो नेम प्लेट एक बार बन जाती है तो नेम प्लेट अपने घर के ऊपर टांग दीजिए. सभी पेरेंट्स को मेरा सजेशन रहेगा कि अपने बच्चों की 2040 की ऐसी नेम प्लेट उनके साथ बैठ के एक्सरसाइज करके काफी होमवर्क करिए. ऐसा नहीं कि मन में आया और लिख दिया. उसमें जरा डिटेल्स में जाइए और इसके लिए अगर आपको गाइडेंस है तो आई विल बी ऑलवेज रेडी टू गाइड यू. तो और बाद में एक ऐसी नेम प्लेट तैयार करके अपने नेम प्लेट के बाजू में लगा दीजिए, पेरेंट्स के नेम प्लेट के बाजू में अपने बच्चों की नेम प्लेट 2040s की. दिस सिंगल थिंग कैन मेक चेंज इन द फ्यूचर. ओके, क्योंकि आप जब नेम प्लेट ऐसी लगा देंगे अपने घर के ऊपर, उससे दो चीजें होगी. एक तो हम खुद नहीं भूलेंगे, तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो फोकस्ड रहेगा अपने आप ही कि हाँ भाई मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे खेती करना है, व्हाटएवर इट इज. ओके, सो दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज फॉर द होल टाइम. और दूसरी बात यह है कि हम भूल जाते हैं तो लोग याद दिलाएंगे हमको.
क्योंकि लोग तो देखते रहते हैं, आइए कलेक्टर साहब आपको अभी से बुलाने लगेंगे बच्चों को, शायद हो सकता है। तीसरा फायदा ये रहेगा कि आपने वो नेम प्लेट लगाई, इट मीन्स दैट कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, कि आप कॉन्फिडेंट है, अपने बच्चों के ऊपर भी कॉन्फिडेंट है आप, इसीलिए आपने नेम प्लेट लगा दिया 2040 की आपके बच्चों की। तो ऐसा बोला जाता है कि विश्वास डालने के बाद विश्वास जो रहता है, कॉन्फिडेंस, वो वी ट्राई टू प्रूव दैट। तो हम लोग कोशिश पूरी ताकत लगाते हैं, जो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है उसको प्रूव करने के लिए। सो दैट विल अगेन हेल्प यू इन अचीविंग द टारगेट। सो नेम प्लेट एक इंपॉर्टेंट बात, सिंपल टूल हो सकता है आगे जाने के लिए। हमारे यहाँ समर में कैंप होते हैं बच्चों के, इस साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, रेसिडेंशियल कैंप रहते हैं 7-7 दिन के, और उसमें हम लोग बच्चों से एक्सरसाइज पूरी करवा के लेते हैं। सब बच्चे अपनी नेम प्लेट तैयार करते हैं 20 साल के बाद की, और घर को लेके जाते हैं। उसको बढ़िया तरीके से बनाइए नेम प्लेट, थोड़ा सा 100, 200, 400, 500 रुपए खर्चा करिए और लगाइए वो। देन द फाइनेंशियल स्टेटस, नेक्स्ट पार्ट इज ओके। तो 2020 का फाइनेंशियल स्टेटस मेरा क्या है, मंथली या ईयरली इनकम आप कर सकते हैं। 2040 का क्या होगा, और पुट इन द नंबर्स ओके। आज शायद ज्यादातर स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो मंथली इनकम आपका 0 भी नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो खर्चा करते हैं पेरेंट्स, चाहे स्कूल फीस है, स्कूल बस है, ट्यूशंस है, कोचिंग है, वॉट एवर इट इज, दैट कलेक्टिव अमाउंट विल बी यूर what you can say yearly package, but that is in the negative terms। कि आपके ऊपर 2 लाख खर्चा हो रहा है साल का, तो -2 lakhs is your package right now। okay, 50,000 खर्चा हो रहा है तो -50,000 is your package right now। okay, ये जब 0 होएगा मतलब आप अपना खर्चा खुद उठा पाएंगे, तब वो 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव उसके बाद में होगा। तो आप 2040 में आप क्या सोचते हैं कि आपका पैकेज कितना हो सकता है? एक जरा कागज पेन लेकर के हिसाब करिए बाद में होमवर्क करके, कि 35 साल में मान लो आप अभी 12th आपका होगा एट द एज ऑफ 18, ग्रेजुएशन होगा डॉक्टर इंजीनियर आप 22-23 साल के बाद, उसके बाद मान लो और आगे पढ़ते हैं तो 26-27 साल हो जाएंगे आपके एज के। फिर आपको जॉब लग जाता है, आप अपना कुछ शुरू कर देते हैं, और फिर 5-7 साल आपके हाथ में रहेंगे, तो 35 एट द एज ऑफ 35, मान लो आज 15 अगर है तो आपका इनकम क्या होगा तब, फाइनेंशियल स्टेटस, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके लगा दीजिए। इट कुड बी एनीथिंग ओके, डोंट वहां कंजूसी मत करिए ओके, इट कुड बी एनी फिगर। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू पुट द ग्राफ, कि आज माइनस है यहाँ से तो यहाँ तक के कैसे पहुंचूंगा 2040 तक के। नेक्स्ट इज द हेल्थ एंड फिटनेस स्टेटस, कि आज मेरा हेल्थ और फिटनेस का स्टेटस क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके कोरोना ने ये सबको सिखला दिया है आज, कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया ऑफ आवर लाइफ, जो शायद आज तक के हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया ओके। तो आज जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाई रिस्क वाले कौन है, तो जिनको डायबिटीज है, जो ओवरवेट है, जिनको कोमॉर्बिडिटी जिसको बोलते हैं कि अलॉन्ग विद कोई बीमारी है, उनको कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है, कोविड-19 का। जो फिट है, हेल्थ जिनका अच्छा है, वो शायद उनको उतना खतरा नहीं है। आज कोविड-19 आ गया, हो सकता है आने वाले दिनों में शायद कोविड 2021 की एडिशन आ जाएगी, तो फिर वैक्सीन का तो हम लोग देख ही रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वैक्सीन आने को अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, वो कितनी कारगर होगी वैक्सीन, कितने लोगों तक के पहुंचेंगी, हमारे तक पहुंचने को कितना समय लगेगा, नोबडी नोज अबाउट राइट नाउ। तो हमारे हाथ में क्या होगा, कोविड-19 आए चाहे कोविड-21 आए, अपने आप को फिट रखे, तो चाहे जो भी बीमारी आए, एक तो हमें होगी नहीं बीमारी पहली बात तो, और अगर होती है तो भी हमको तकलीफ नहीं देगी वो, जस्ट इट विल हैव द इन्फेक्शन, कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, एंड वी विल बी अगेन बैक विदाउट एनी डैमेज। तो हेल्थ एंड फिटनेस की लेवल हमारी क्या है आज, तो उसके लिए ये 3 इंडिकेटर जिसके बारे में मैंने बात किया, कि डाइट के बारे में हमको थोड़ा सा सोचना होगा ओके। तो डाइट का कंप्लीट 2 घंटे का सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने जैसे बोला आप यूट्यूब पे जाकर के देखिए, मैं उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, अगर खास करके इम्यूनिटी की बात चलती है इसलिए सिर्फ बता देता हूँ कुछ चीजें। सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करिए। पहला प्रिंसिपल है कि भूख लगे बगैर खाना नहीं है,
जहां तक हो सके दिन में 2 या 3 टाइम ही खाए, उससे ज्यादा नहीं खाए। तीसरी बात है कि जितना कम से कम प्रोसेसिंग वाली चीजें खाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। जितना प्रोसेस प्रक्रिया वाली चीजें खाएंगे उतना वो जंक फूड में कन्वर्ट होते जाता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। ओके, उसके बाद फिर जहां तक हो सके जो शक्कर और ऐसी सब चीजें है, तेल घी वाली जो है, फैट्स एंड शुगर, डायरेक्ट कैलोरीज वाली चीजें कम से कम करिए। फाइबर रिच डाइट हो, अलग अलग टेस्ट हो डाइट में। बहुत ऐसे टीवी के सामने देख करके, मोबाइल के ऊपर देख करके बिल्कुल नहीं खाना खाए। माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं कि एक और 32 बार चबाना चाहिए। तो टेक इनफ टाइम टू ईट एंड डाइजेस्ट, तो इससे फायदा होगा आपको हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। सेकंड पार्ट इज द ऑफकोर्स एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। हमारे इतने सारे जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, ये सब अगर हम हिलाएंगे नहीं, अगर नहीं उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये जाम हो जाएंगे। ओके, फिर जॉइंट पेन से लेके तो कई सारी चीजें होगी, वेट गेन होगा और बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये सब पीछे लग सकती है। थर्ड इज द रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ओके, so around 7-8 hours of good sleep, that is most important part for rejuvenation। दिन भर में जो कुछ wear and tear होता है उसको नींद में ही वो शरीर बॉडी अपना फिर से बनाती है। तो इनफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो भाई एग्जाम है, जगते रहे, 3 घंटे ही सो रहे, 4 घंटे सो रहे, चाय कॉफी पी करके नींद नहीं आए इसलिए, so that is absolutely wrong। that is not going to help you even in the academics or the academic performance also। okay, so enough rest and relaxation both physical and mental level के ऊपर, ये important बात है। next will be the family status। हमारे फैमिली का स्टेटस क्या है आज, हमारे फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं। हो सकता है ज्यादातर पेरेंट्स और बच्चे हो गए, भाई बहन। when I will be in year 2040 मेरे फैमिली के डेफिनेशन क्या होगी जब मैं 35-40 साल का होऊंगा। क्या मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली के डेफिनेशन का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। हम देखते हैं कि कई सारे लोगों के फैमिली के डेफिनेशन में से पेरेंट्स डिलीट हो चुके हैं एट द एज ऑफ 30-40। ओके, शादी होने के बाद एक बार कहीं इधर उधर चले गए तो शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि हमारा फैमिली का स्टेटस क्या रहेगा 2040 में। नॉट ओनली विद द ब्लड रिलेटिव्स बट द एक्सटेंडेड फैमिली, आई मीन आल्सो। ओके, एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे कितने लोग होंगे। ओके, हमारे ऊपर अगर कोई चीज आती है, कोई तकलीफ आती है, तो कितने लोग हमको साथ देने के लिए सामने आते हैं। कितने दोस्त, आज जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वो सबके साथ आपका रिश्ता 2040 में भी बना रहेगा या नहीं रहेगा, और कितना बॉन्डेज रहेगा, ये टारगेट अपने सामने रखिए। दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप्स। सो एक्सटेंडेड फैमिली की बात अगर हम करते तो रिलेशनशिप की बात आएगी। इसके फिर सोशल स्टेटस की बात आ सकती है, उसके रिलेशनशिप की आगे की बात हम करते तो उसके कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को लिखना चाहिए। हाउ मेनी पर्सन्स यू नो, कि आज मैं कितने लोगों को जानता हूँ दुनिया के। देयर इज अराउंड व्हाट कैन से 700 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें से कितने लोगों को मैं जानता हूँ, नंबर लिखिए आज का। 2040 का आपका क्या टारगेट है और नंबर लिखिए। हाउ मेनी पीपल नो यू, कितने लोग मुझे जानते हैं आज, 100, 200, 500, 1000, 5000। मेरा टारगेट क्या है 2040 का कि दुनिया के कितने लोगों ने मुझे जानना चाहिए। 10,000, 20,000, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, वट एवर इट इज। ओके, दैट कुड बी द अनदर इंडिकेटर। नंबर ऑफ फोन नंबर्स यू हैव, आपके मोबाइल अगर यूज करते हैं तो कितने मोबाइल नंबर आपके यहाँ सेव है, या कितने लोगों के मोबाइल में आपका फोन नंबर सेव है। हमारे मोबाइल में हम किसका फोन नंबर सेव करते हैं, जो शायद हमारे कुछ काम के हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमको कुछ ना कुछ तो भी बॉन्ड है, कनेक्ट है, उनके ही रखते हैं। रास्ते पर के लोगों के तो मोबाइल नंबर हम सेव नहीं करते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर अगर हजारों लोगों के मोबाइल में सेव होना चाहिए, हजारों लोगों ने मुझे जानना चाहिए, तो हाउ दिस कुड हैपन। उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू गिव समथिंग टू दिस वर्ल्ड। लोग गिवर्स को याद करते हैं, रिसीवर्स को नहीं। सो आई शुड ट्राई टू गो टू द गिविंग एंड। व्हाट आई कैन गिव टू द सोसाइटी, टू द पीपल अराउंड मी,
ओके, तो जितना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ दे सकता हूँ, उतना लोग मुझे याद रखेंगे, उतना लोगों मुझे जानने लगेंगे. सो द वर्ल्ड ऑलवेज कीप द ट्रैक ऑफ द गिवर्स एंड नॉट ऑफ द रिसीवर्स. तो हमारे पास क्या है देने लायक, ये आज से शायद हम लोग सोच सकते हैं. तो क्या क्या चीजें हम लोग दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए. ओके, आई एम हैविंग वन सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑफ जॉय ऑफ गिविंग ऑल्सो, सो यू कैन गो थ्रू दैट. सो हम लोग पैसा दे सकते हैं, हम लोग टाइम दे सकते हैं, हम लोग स्किल दे सकते हैं, हम लोग प्यार दे सकते हैं, हम लोग स्माइल दे सकते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. ओके, so lot many things we are having which we can offer to the world, whatever may be our age. कोई दिक्कत नहीं उसमें, हम कर सकते हैं ये. Contribution, so it is much more than what you can say the giving. What will be the my contribution to this world? आज मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है स्कूल में? कंट्रीब्यूशन वो होता है कि जो आपके जाने के बाद भी याद रखा जाता है. आप स्कूल में से जाने के बाद भी अगर आपके स्कूल में याद आते रहेगी हमेशा, तो दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन कि अरे हाँ ये बच्चा था, ये बच्ची थी ना, तब ऐसा था. इट कुड बी बोथ वेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वैसे ही 2040s में या उसके बाद मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा ये दुनिया के लिए, व्हाट आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस लाइफ, टू दिस वर्ल्ड. ओके, एडजेक्टिव्स मेरे नाम के साथ कौन से लगाए जा सकते हैं? ओके, 2040s में कौन से लगाए जाएंगे? द एडजेक्टिव्स व्हिच आई विल बी टैग्ड विथ. आज कौन से लगाए जाते हैं एडजेक्टिव्स मेरे नाम के साथ? 2040s का मेरा क्या टारगेट है? एडजेक्टिव्स दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव में बहुत सारी चीजें जो शायद हम सब पसंद करते होंगे, अरे भाई हाँ ऑनेस्ट है, सिंसियर है, हार्ड वर्कर है, मेहनती है, ईमानदार है. नेगेटिव बोले तो क्या, पैसे खाने वाला है, लोगों की जेब कतरने वाला है. ओके, इट कुड बी एनीथिंग, आलसी है. ओके, इट कुड बी एनीथिंग, झगड़ालू है. तो हम में से शायद सभी लोग ये चाहेंगे कि हमारे साथ ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स कभी ना लगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव ज्यादा से ज्यादा लगे. तो कौन से एडजेक्टिव मेरे नाम के साथ लगना चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाइए. कौन से एडजेक्टिव मेरे नाम के साथ लगना नहीं चाहिए उसकी भी एक लिस्ट बनाइए. ओके, और फिर कोशिश करिए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा. सो दैट विल गिव यू द फ्रेम फॉर द एडजेक्टिव्स. So these are the things which, these are the some of the things. मतलब पूरा एक्सरसाइज तो नहीं ले पाएंगे वेबिनार में, जस्ट आई कैन गिव यू अ फ्रेम ऑफ हाउ यू कैन थिंक ओवर एंड प्लान फॉर योर ओन लाइफ विजन डॉक्यूमेंट. ओके, अब यहाँ तक के जाने के लिए 2040s में मुझे वहां पहुंचना है, तो मेरे पास क्या साधन है आज, आज मुझे क्या करना होगा. तो उसके लिए मुझे लगता है दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. उसमें की एक पहली बात जो रहेगी वो डेफिनेटली क्या रहेगी कि स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए अलग अलग. ओके, तो या तो आई नीड टू एक्वायर न्यू स्किल्स जो आज मेरे पास नहीं है शायद, या आई हैव टू डेवलप द एग्जिस्टिंग स्किल लेवल. तो मान लो मेरे पास खाना बनाने का स्किल है या नहीं था, तो कोरोना की वजह से शायद कई बच्चे ने सीख लिए. जैसे घर वाले स्किल्स, घर में रहे तो शायद कई सारे स्किल्स हम लोगों ने सीख लिए. अभी ऑनलाइन काफी सारी चीजें हो रही, तो हम लोगों ने ऑनलाइन स्किल्स सीख लिए नए, या पहले थे हमारे तो स्किल लेवल को हम लोगों ने इम्प्रूव किया पहले से ज्यादा. तो आई विल सजेस्ट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ द स्किल्स यू आर हैविंग और यू वांट टू लर्न इन कमिंग ईयर, और उसके पीछे फिर उसको टारगेट बनाइए और स्किल्स को बढ़ाइए. मान लो पब्लिक स्पीकिंग का स्किल है, आपको भाषण देना अच्छा लगता है मगर आज शायद नहीं आता है उतनी अच्छी तरीके से, तो आप ये टारगेट रख सकते हैं कि आई शुड बी नोन एज अ गुड पब्लिक स्पीकर. एक जमाने में मुझे भी स्कूल में जब था तब नहीं बोलना आता था, मगर नाउ आई लर्न. और जैसे अभी इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि यस, डॉक्टर अविनाश साहू जी इज अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर. ओके, तो ये नया स्किल और स्किल की लेवल जो है वो भी हो जाती है कि आज कोरोना की वजह से मान लो अभी सब ऑनलाइन चीजें हो रही है,
तो ये शायद ऐसे वेबिनार भी मेरे ख्याल से 30-40 हो गए होंगे अभी अभी, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। फिर फेसबुक लाइव, यूट्यूब और ये सब मिला करके मुझे लगता है पिछले 9 महीने में एक 100 क्या, हमारी डायबिटीज के ही हर 3 महीने में 10 सेशंस तो होते ही है जूम मीटिंग के। तो करीब करीब 300 सेशंस हुए होंगे पिछले 9-10 महीने में अलग अलग। उसके पहले भी हर महीने में करीब करीब एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता था बोलने के लिए, भाषण देने के लिए मुझे इनवाइट किया जाता था। ओके, तो ये बात है, जबकि एक जमाने में मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था ये स्किल, नहीं के बराबर था, 0 के बराबर था। ग्रेजुअली आई लर्न दैट एंड नाउ आई रीच टू दिस लेवल। हम में से शायद ज्यादातर लोगों की इच्छा रहती है कि मुझे बनना है पब्लिक स्पीकर, मगर वो टारगेट हमको रखना होगा और पब्लिक स्पीकर बनना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, ये चीजें अपने आप सामने आएगी कि मुझे पढ़ना होगा, फिर किताबें पढ़नी चाहिए, नया नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, अच्छे भाषण सुनना चाहिए, अच्छे भाषण देने की अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें फिर हमको शायद ढूंढते आनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं, 10, 20, 50 स्किल्स, वो लिस्ट बनाइए। नए स्किल क्या सीखना है और जो स्किल है एग्जिस्टिंग उसकी लेवल कैसे अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। Another thing is that the capacities, try to develop your capacities. Okay, तो कैपेसिटी शायद आपकी फिजिकल कैपेसिटी है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है। ओके, सो स्किल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल कैपेसिटी को ग्रो करिए। ओके, तो स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज है और ये सब करते रहिए, योगा करते रहिए, तो उसका फायदा रहेगा। मेंटल कैपेसिटी मतलब आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ते आना चाहिए, पेशेंस आपको इंप्रूव करना होगा, कूलनेस आपको इंप्रूव करना होगा। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आप इंप्रूव करिए, तो अलग अलग नॉलेज हासिल करिए, तो शायद फायदा होगा आपका उसके लिए। कैपेसिटीज अगर बढ़ा सकते हैं आप, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू to reach to the goal you wish to be in year 2040. Okay, और फिर आज से उसके लिए प्लान बनाना शुरू कर दीजिए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। थर्ड थिंग इज द क्वालिटीज, अपने आप में क्वालिटीज विकसित करिए। विच काइंड ऑफ क्वालिटीज विल हेल्प यू टू रीच टू द टारगेट यू विश टू बी देयर। तो कौन सी क्वालिटीज उसके साथ मुझे खुद को इक्विप करना है, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसकी भी फिर स्किल जैसा अपग्रेड करिए हो क्या, हाँ ठीक है भाई मुझ में क्वालिटी है। जैसे समय के ऊपर, समय की पाबंदी जिसको हम बोलेंगे, टाइम पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी। ओके, तो ये क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ग्रेजुअली ग्रो करते आना चाहिए। ओके, फिर शायद हो सकता है कि अपने आप को जो हम whatever the word we give to our own self, we should try to stick to that word. अगर मैंने तय किया है हाँ भाई मुझे ये करना है, so I should remain adherent to that word. Okay, या फिर मान लो कि हर किसी में की कोई अच्छी चीज हमको ढूंढते आनी चाहिए, so that could be the another thing. Okay, हर किसी में का किसी की क्या बोलेंगे हम लोग कि किसी ने हमारा इंसल्ट किया, कि कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, we should learn to what you can say forget that, forgetfulness जिसको बोलेंगे forgiveness. ओके, हमको उसको क्षमा करते आना चाहिए, ना कि उसको मन में पकड़ के रखे जिंदगी भर और अपना स्ट्रेस, बीपी और शुगर बढ़ाते जाए और सामने वाले को तकलीफ दे। तो क्वालिटी इस प्रकार की हमारे में क्या क्या होनी चाहिए और उसकी लेवल कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज द थर्ड थिंग। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स? द स्किल्स, द कैपेसिटीज एंड द क्वालिटीज। एंड फोर्थ कुड बी द रिलेशनशिप्स। लोगों के साथ कनेक्ट बढ़ाइए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, रास्ते गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा है ज्यादा। ओके, सबके साथ रिश्ता बढ़ाइए, कनेक्ट बढ़ाते जाइए। ये शायद ऐसा बोला जाता है कि रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स फॉर एनीथिंग। कोई भी फील्ड के लिए, आपको चाहे बिजनेस में जाना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है, या चाहे जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशनशिप्स। एक सिंपल
आपके लिए मैं सजेशन देता हूं कि रोज एक नए व्यक्ति के साथ नए व्यक्ति को दोस्त बनाइए। रोज का फ्रेंडशिप विथ वन न्यू इंडिविजुअल। ओके, ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स बाय वन एवरी डे। तो साल के 365 हो गए, अगले 20 साल का हिसाब लगाएंगे तो 7,500 लोग हो जाएंगे। और ये 7,500 नहीं रहते हैं, उनका अपना सर्कल भी आपके साथ आता है। फ्रेंड्स 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 ऐसा जो रहता है ना, जैसे फेसबुक के ऊपर है, ओके, फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स ऐसे आ जाते हैं ना नेटवर्क में। तो शायद ये रोज का एक का हिसाब अगले 20 साल में इट कुड बी lakhs of people, it could be anything. Okay, so try to start doing, taking action on these lines right from today. आज से ही ये सब चीजें करना चालू करिए तो शायद फायदा होगा आपको आगे जाने के लिए। और ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करिए अपना। इसके लिए जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई, तो पहले सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, कागज के ऊपर पूरा नक्शा बनाते हैं, देन वी स्टार्ट एक्चुअल डिगिंग एट द ग्राउंड। तब तक के नहीं करते हैं। द सेम प्रोसेस वी नीड टू फॉलो फॉर आवर लाइफ। तो ये हम लोग नहीं करते हैं। तो आप कोई काउंसलर के पास जाइए, कोई एक्सपर्ट्स के पास जाइए, 4 लोगों से मिलिए, उनका दिमाग खाइए, फिर अपने लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करिए, उसको रेगुलरली अपडेट करते जाइए। ओके, रेगुलरली काउंसलर के पास, जैसे आई चेकअप के लिए हम हर साल 2 साल में जाते हैं, वैसे जाइए काउंसलर के पास, शेयर करिए उनके साथ, उनका गाइडेंस लीजिए और फिर ग्रेजुअली डेवलप करते जाइए। तो फिर आप जो चाहते हैं 2040 में ऐसा हो, वो खाली आपकी चाह या विश नहीं रहेगी, दैट विल बिकम योर गोल। ऐसा बोला जाता है कि गोल माइनस एक्शन इज इक्वल टू जस्ट ड्रीम, ड्रीम प्लस एक्शन इज इक्वल टू गोल। आज हम में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारे चाहते हैं, ड्रीम्स है, बट दे आर विदाउट एक्शन। वी वांट टू बी हेल्दी, ओके, 6 पैक्स 12 पैक्स, बट विदाउट एक्शन। दिन में 8 बजे सो के उठते हैं और बोलते हैं कि भाई 6 पैक होना चाहिए बिस्तर के ऊपर लेट के, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। So try to add actions in your dream, so that will help you to reaching to your dreams. और ये ऐसा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार अगर हो जाता है तो हमारा आगे का जर्नी काफी, जिसको बोलते हैं हम, प्रेडिक्टेबल, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू राइट फ्रॉम टुडे टू रीच to that goal of year 2040. नहीं तो ये समझ में ही नहीं आता क्या करें। तो समय है आज आपके पास, मगर आपको नहीं समझ में आता क्या करें, समय ऐसे ही निकल जाता। और फिर जब समय आता है तब ऐसा लगता है कि समय निकल चुका है सब, तो इसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मुझे लगता है इतनी सारी चीजें इम्पॉर्टेंट होगी। और ये एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लिए काम में आ सकती है, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। आई हैव जस्ट गिवन यू द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ यू कैन प्रिपेयर द विजन डॉक्यूमेंट फॉर योर ओन लाइफ। लॉट मेनी थिंग्स आर टू बी, व्हाट यू कैन से, आपको काफी होमवर्क करना पड़ेगा, गाइडेंस लेना पड़ेगा, काफी सारी चीजें उसमें और ऐड करते जाना चाहिए। ये फ्रेम है खाली, इसको अभी आपको काफी रंग रंगोटी करनी पड़ेगी, काफी शेप अप करना होगा, काफी उसको कलरफुल, जिसको हम बोलेंगे स्केच निकाला है अभी, उसको रंग भरना, उसमें अलग अलग प्रकार के, और ये सब चीजें आपको करनी होगी। और ये प्रोसेस में अगर इफ यू फाइंड some, you need some help, I will be always ready. You can reach to me on social media, on Facebook, YouTube, WhatsApp or other things, or email or physically at Amravati. I am based at Amravati, Prayas Sevankur Bhavan, jaise abhi bataya. I will just give you some introduction in the next 2-3 minutes, and then we will go to the question and answer session. So Prayas is basically an NGO. Our agenda is helping individuals and organizations in finding out their own agenda. So we are involved in various activities. So basically, why of living, how we can
reinstate that fire of living which is missing in our day-to-day living, then the feeling of gratitude, how we can increase that. तो ये बात करते हैं हम लोग. फिर एक तरफ जो है कि जिनके पास कुछ नहीं है इसलिए बेचारे परेशान है, एक तरफ है कि सरप्लस है इसलिए परेशान है. ओके, एनीथिंग इन एक्सेस इज टॉक्सिक, सो प्रयास इज अ ब्रिज. तो जिनके पास सरप्लस है, एक्सेस है, उन्होंने वो देना चाहिए. किनको देना चाहिए? कि जिनके पास अभाव है, वो आर हैविंग द स्केर्सिटी. हम ये दोनों का जोड़ने का काम करते हैं हम लोग. ओके, तो कई सारी एक्टिविटीज हमारे होती रहती हैं. सोशल सब्जेक्ट के बारे में R&D होता है, थोड़ा सा इनोवेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है. एज इग्नाइटर रोल करके काफी सारी चीजों में लोगों को इनिशिएट करना, कोई प्रोसेस. पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग विषयों के ऊपर हम लोग काम करते हैं. देन प्रचार प्रसार प्रबोधन जागरण है, नेटवर्किंग है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है. फिर कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज है. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल. कई सारे वर्कशॉप हम अलग अलग विषयों के ऊपर लेते हैं. रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पेरेंटिंग है, एंगर एंड ईगो मैनेजमेंट है, हाउ टू get success in a life exam, the leadership and management skills, then public speaking and communication skill, health and fitness. Okay, एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर है अमरावती में जो बना है. 40-50 लोगों की रेसिडेंशियल व्यवस्था यहाँ है. अभी कोरोना की वजह से now that has been stopped right now. अगर बाद में हो सकते हैं, बच्चों के कैंप्स और ये सब होते हैं. So I am also from a middle class family background, from a very small place, छोटे गांव से आया हूँ. But fortunately I was what can I say, good academic career. 10th 12th में तब merit list निकलती थी. I was topper in 3 subjects in board. Then I had done my MBBS in 82-83 and then decided what not to do in my life. I don't want to use my knowledge for making money, but to use it for the needy one. इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स थे. पहले 10 में था मैं हमारे कॉलेज से. कई सारे विषय में मुझे MDMS मिल सकता था, मगर आई ट्राई टू नॉट ऑप्टेड फॉर दैट एंड आई lived and worked for the rural and tribal area for initial 23 years and then last 20 years we are working for the urban people also. Okay, Prayas is the name of our NGO. एक प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस एंड हैप्पीनेस के बारे में भी बताया है. ये अलग अलग विषयों के ऊपर सेमिनार्स, वर्कशॉप, वेबिनार्स, कैंप्स ऐसे सब हम लोग लेते हैं. पर्सनल लाइफ कोचिंग, जैसे मैंने बोला है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मुझे अपने लाइफ को शेपअप करने के लिए कोई तो भी कोच की जरूरत होती है. तो that kind of role also we are doing for the students, for the professionals and other people also. एक डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम हमारा भी ऑनलाइन कोरोना की वजह से शुरू हुआ. दैट इज गिविंग अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स. एक 3 महीने के 10 सेशन होते हैं, 2 घंटे के, 7 दिन का योगा ट्रेनिंग, पर्सनल काउंसलिंग, फॉलो 2-2 घंटे के, और 20 घंटे में 3 महीने में डायबिटीज में की एक 50 से ज्यादा % लोगों की दवाइयाँ पूरी बंद हो जाती है. ब्लड शुगर उनकी नॉर्मल आ जाती है. वेट लॉस हो जाता है 10 से 20 किलो. स्टैमिना, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है. कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस इट इज पॉसिबल. ओके, एक टीम है हमारी पूरी डॉक्टर्स की जो ये प्रोग्राम करते हैं हम लोग. ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब के लिए प्रोग्राम इज अ वेरी यूजफुल वन. तो अभी हमारी हर महीने यूजुअली एक बैच शुरू होती है. 11th बैच अभी लास्ट संडे को ही शुरू हुई है. नेक्स्ट बैच दिसंबर में होगी. एक यूएसए के लिए एक बैच हम लोगों को शुरू करनी हुई है, और सेकंड बैच यूएसए की अभी नेक्स्ट मंथ में शुरू होगी, दिसंबर में. फिर से ऑनलाइन वर्कशॉप्स हम लोग लेते हैं ये सब सब्जेक्ट के ऊपर, मैंने जैसे बोला वैसे. फिर हम लोगों का एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का एक स्टेट लेवल नेटवर्क हम लोगों ने थोड़ा सा बनाया है. उनके मीटिंग्स होते रहते हैं. उनके लिए कैंप्स, पहले रेसिडेंशियल कैंप्स होते थे, अभी ऑनलाइन चीजें होती है. ब्लाइंड है, फिजिकली चैलेंज है, ओके, HIV पॉजिटिव बच्चे हैं, ऑर्फन है. तो ये सब प्रयास का डोमेन है काम करने का, कि जिनके पास स्केर्सिटी है, कुछ तो भी नहीं है, कम है, तो उनको हम लोग जो एफ्लुएंट क्लास है, जो जिनके पास ज्यादा है, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं. okay? So we provide the nutritious supplement for the HIV positive orphan kids. पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट के कुछ बच्चों को हम लोग देते हैं हर महीने. ब्लाइंड लोगों को जिनका रोजगार चला गया है तो उनको कुछ राशन और ये सब चीजें. ट्रेनिंग खास करके जो है उनके लिए, कि जैसे मोबिलिटी ट्रेनिंग का एक वर्कशॉप हुआ था,
एक्चुअली व्हाइट स्टिक कैसे इस्तेमाल करना, तो 100 बच्चे का 2 दिन का पूरा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हमारे यहाँ हुआ था। यूथ कैंप हमारे यहाँ होते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, 3-3 दिन के रेसिडेंशियल कैंप्स बाबा आमटे के आनंद वन से लेके तो कई सारी जगह हम लोग करते हैं। और उसमें पूरे स्टेट में से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, 200, 300, 400 3 दिन के लिए, और उनके साथ बात करने के लिए कई सारे रोल मॉडल्स को हम बुलाते हैं, और टू मोटिवेट देम और डूइंग समथिंग गुड। खाली अपने लिए नहीं जीना है, अपने साथ साथ समाज को भी कुछ गिव बैक करना है, कुछ तो भी देना है हमको रिटर्न। ओके, होलिस्टिक हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हम लोग काम करते हैं कि आई हैव डिलीवर्ड मोर देन 1000 स्पीचेस ऑन दिस सब्जेक्ट, हाउ टू बाईपास द बाईपास। ओके, हार्ट अटैक और ये सब चीजें कैसे हम टाल सकते हैं, एक छोटी किताब भी लिखी है। लाइफस्टाइल इज माय सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड एक्सपर्टीज, दैट इज व्हाट आई कैन से। फिर बच्चों के लिए ऐसे कई सारे कैंप्स होते हैं कि ये प्रोग्राम हम लोग हर महीने लेते थे, नागपुर, यवतमाल, अमरावती, 3 जगह। इसके कई सारे वीडियोस, इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स है काफी सारे, वो भी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में, कई सारे स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, सिंपल हेल्दी हैबिट्स ऑफ रीडिंग, food habits and exercise, anything. So we had been to more than 5,000 school colleges till now and addressed to more than 6 lakh students and more than 50,000 schools and college teachers across the state and beyond the state also. Basically regarding how to develop the life skills and healthy habits. Okay, ये विजन 2040 के बारे में हम लोगों ने बात करी है अभी। एक सेवांकुर केयरिंग फंड करके कैंसर और ऐसी जो बीमारियां हैं, क्रॉनिक इलनेसेस, और जिनके लिए कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे बीमारियों के लिए, हेल्थ के लिए हम लोगों ने एक फंड क्रिएट किया। और जो खास करके स्टूडेंट्स ने ही इनिशिएट किया था कि रद्दी, न्यूज़पेपर की रद्दी जमा करके घर घर से, उसमें से एक फंड क्रिएट किया गया। और फिर हर साल अभी हमारे यहाँ लोग न्यूज़पेपर की रद्दी ला करके देते हैं, और उसमें से फिर हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, HIV वालों को हेल्प करने के लिए, डिसेबिलिटी वालों के लिए, कैंसर के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हैं। ये तो कैंसर के लिए हम लोग काम करते हैं। फिर अर्न एंड लर्न एंड एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, कुछ गरीब बच्चों के लिए हम लोग थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम है, तो रोज के 300 बच्चे आते हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी कोरोना की वजह से ओनली दिस हैज बीन स्टॉप्ड राइट नाउ, मगर रोज के 365 days a year, no vacation, सुबह 6 से रात को 11 बजे तक बैंकिंग है, चाहे MPSC है। एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंक्यूबेशन सेंटर भी हम लोग चलाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हाउ टू डेवलप द बिजनेस। अच्छी किताबें लोगों के हाथ में जाए, रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हो, इस बारे में भी हम लोग काम करते हैं। तो कई सारे मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग बुक्स हमारे यहाँ रहते हैं। कई सारे प्रोग्राम में हम एग्जिबिट भी करते हैं, छोटा सा प्रमोट करते हैं। 3 किताबें मैंने लिखी है, मराठी में है। वन इज रिगार्डिंग हेल्थ, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड यंगर, उदय संवाद। एक दूसरी मराठी में है कि एग्जाम में और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर गेटिंग सक्सेस इन द एग्जाम और द लाइफ, जिसमें का एक हिस्सा आज हम लोगों ने लिया है इस वेबिनार में। तीसरा एक जो आमी बिगड़ लो करके हमारा जो प्रोग्राम होता था, उसमें जो रोल मॉडल्स आकर के गए हैं, तो उनके बारे में भी मैंने लिखा था। स्क्रैप बैंक करके हमारे एक कंसेप्ट है कि आपके घर में जो चीजें आपके काम की नहीं, वो लोग हमको ला के देते हैं, यूज क्लॉथ, बाइसिकल्स, स्पेक्टेकल्स, फर्नीचर, और वो हम जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाते हैं, आइदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी काम में कई सारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। एसओ स्कूल ने भी ये सब चीज़ों में हमारी हेल्प करी है समय समय के ऊपर, चाहे नोटबुक हो, चाहे कपड़े हो, चाहे प्लास्टिक के बारे में हो। और ये सब चीज़ें जो होती है, कोई गवर्नमेंट एड हम लोग नहीं लेते हैं, कोई बाकी ऐसा कोई बड़ा कोई कारपोरेट से फंडिंग नहीं होता है, इंडिविजुअल डोनेशन से ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है, ज़्यादातर व्यक्तिगत डोनेशन से। These are our contact details, तो आप चाहे तो ये मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको अगर लगता है तो कुछ यू कैन व्हाट्सएप मी योर डिटेल्स एंड देन प्रॉब्ली वी कैन हैव द शेयरिंग। एक वेबसाइट है हमारी, prayasNGO.net,
एक डॉक्टर अविनाश साहू जी प्रयास नाम से एक फेसबुक पेज है जिसके ऊपर हमारे एक्टिविटीज हम अनाउंस करते रहते हैं, और प्रयास अमरावती करके एक यूट्यूब चैनल है. सो यू कैन कॉन्टैक्ट, रिमेन इन टच और थ्रू ऑल दिस सोशल मीडियाज. मुझे लगता है कि यहाँ मैं रुकता हूँ और अभी आखिरी में क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग मुड़ते हैं कि if you are having questions, and so definitely you can put it in the comment box on the Facebook, and then I will try to answer that. Yes, over to madam. Yes. Thank you very much, sir, for such an informative session. So you can stop presenting. Yes. Sir, जैसे अभी आपने जब हम when we were going through these lists of things to be made in 2020 and 2040, तो Okay. जैसे you told us to do कि like you know हम finance पे बात करें, health पे बात करें, how can we decide the selection criteria? जैसे मैं एक student की बात करूँ तो they are like you know 15-16-year-old children. So how do they decide their future right now? Where should they take guidance from? How? Okay. I mean, every student, even every kid is also having some aspirations. तो जैसे बचपन से बोलते हैं ना बच्चे क्या है भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS IPS बनना है. दैट मे नॉट बी क्लियर. किसी के इन्फ्लुएंस में आके बात कर रहे होगे आज शायद, तो शायद पेरेंट्स उसमें हेल्प कर सकते, टीचर्स हेल्प कर सकते. मान लो कि मेरे बच्चे का एस्पिरेशन है कि नहीं भाई मुझे IPS ऑफिसर बनना है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े लोग शायद हेल्प कर सकते हैं कि उनको कुछ IPS ऑफिसर के साथ मिला दीजिए. ओके. गांव में जब आप जाएंगे तब वो देखने उसको कोई IPS ऑफिसर के बंगले के सामने से लेके जाइए, उसको नेम प्लेट की तरफ ध्यान दीजिए, तो नेम प्लेट उसके दिमाग में फिट हो जाएगी अगर करना है तो. फिर कुछ लोगों के इंटरव्यू लेने दीजिए उसको, कुछ किताबें पढ़ने दीजिए IPS जो हुए हैं उनके एक्सपीरियंस, कुछ यूट्यूब वीडियोस दिखाइए, तो फिर उसको समझ में आएगा कि IPS क्या बला होती है और मैं उसमें फिट बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ. या तो उसका पक्का हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे यही करना है, या तो बोलेगा नहीं यार ये तो बहुत अपने दिमाग के आगे वाली बात है, ये छोड़ देते चलो दूसरा कुछ करते हैं. तो ग्रेजुअली ऐसा धीरे धीरे वो बाय वे ऑफ ओमिशन और बाय वे ऑफ फोकसिंग हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं. तो जो भी करियर करना चाहते हैं बच्चे, पेरेंट्स ने थोपना नहीं चाहिए कि मेरी इच्छा है इसलिए कर. उसकी क्या इच्छा है, उसकी जो भी इच्छा है उसको एक्सपोजर दीजिए. उसको डॉक्टर बनना है लेके जाइए, चाहे डॉक्टर के पास, उसको पूछने दीजिए सवाल क्या है क्या नहीं, तो फिर अपने उसको अपने आप समझ में आएगा, तो ग्रेजुअली वो शेपअप होते जाएगा. सो वी कैन हेल्प दैट. इवन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द काउंसलर्स, ट्रेन काउंसलर्स आल्सो. टीचर्स शायद हेल्प कर सकते हैं इस बारे में. सर एक और क्वेरी था कि जैसे जो हम विजन बना रहे हैं अभी बच्चों के लिए, so is it suggestible to have just one vision or can we have a plan B? I mean, what is more suggested? Oh, right now there is no what you can say deadline तो है नहीं कुछ अभी ऐसा, तो शायद अभी फोकस ही करें. जब थोड़ा सा डेडलाइन इशू आएगा, मान लो जैसे अभी हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बी उसमें के 200-250 तो BE हो चुके हैं जो इंजीनियर्स है. 2 साल हो गए 3 साल हो गए पढ़ ही रहे हैं, एग्जाम में कोई क्रैक नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए प्लान B इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा. नहीं, अगर अभी अगर 15-16 साल के बच्चे हैं और कोई डेडलाइन इशू नहीं है आज मान लो, हाँ ये जरूर होगा कि 12th के बाद कहाँ एडमिशन लेनी है. मान लो आपको MBBS बनना है और MBBS में नहीं मिलती है, तो फिर प्लान भी होना चाहिए डेफिनेटली. यस, so इट then शुड बी when I देयर. make a vision document, जैसे जब आपने कहा कि अपना नेम प्लेट बनाओ, तो वो नेम प्लेट जो रहता है तो वहां पे डू वी हैव अ प्लान बी कि नहीं? नो नेम प्लेट तो एक ही रहे हमारे पास डेफिनेटली. ये एट द बैक ऑफ द माइंड प्लान बी रहे, नॉट नेसेसरी, क्योंकि प्लान बी शुरू से ही फ्रॉम डे फर्स्ट से अगर रहेगा तो यू विल नॉट फोकस ऑन दैट. क्या बोलेंगे हाय प्लान बी तो है ही है मेरे पास, ठीक है ना. सो इट शुड कम एट अ लेटर स्टेज. डेफिनेटली इट शुड बी देयर बट इट शुड बी एट द लेटर स्टेज, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग. सर जैसे जो हमने विजन डॉक्यूमेंट की बात की, तो हम पूरा सक्सेस पे बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम बच्चों को हाउ टू हैंडल फेलियर के ऊपर
कैसे गाइड? डेफिनेटली नहीं, वो जो स्ट्रेस वाली बात जो है, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस की बात आती है, तो वो जब तक कि हम नहीं करेंगे तब तक कि होगा ही नहीं ना वो तो। सो फेलियर के लिए कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जरूर। मैं जब एमबीबीएस में था, फाइनल एमबीबीएस के एग्जाम में मैंने ये टारगेट रखा कि मैं फेल होकर के देखूंगा। ओके, क्योंकि उसके पहले जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, मेरिट में ही रहा था सभी एग्जाम्स में। तो फिर ऐसा लगता था कि एग्जाम में फेल होना बहुत बड़ा फेलियर है, और उसको हम फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके लिए जैसे हम लोग कोरोना के लिए अभी देख रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए तो कोरोना का डर चला जाएगा। तो अगर फेलियर की वैक्सीन ले लिया जाए एक बार, तो फेलियर का डर चला जाएगा हमेशा के लिए। तो आई वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड to take that in what I can say vaccine of failure by making attempt to fail in the final exam of final MBBS। और फिर आखिरी 6 महीने में पढ़ाई करना सब छोड़ दिया, किताबें पढ़ता था, हम एक स्लम में जाते थे, वहाँ बच्चों के साथ खेलते थे, ऐसा था वैसा, और सिर्फ क्लासेस करता था जितना होता था रेगुलर उतना, क्योंकि कोई टारगेट था नहीं, तो टेंशन का स्ट्रेस का कोई सवाल ही नहीं था। ओके, एग्जाम दे दिया, जा करके रिजल्ट आया, तब पता लगा कि मैं फेल नहीं हुआ, पहले 10 में आया हमारे कॉलेज में। ओके, तो ये एक बार हमारे मन से फियर ऑफ फेलियर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको अगर निकालना है तो यू शुड हैव सम एक्सपीरियंसेस, वेरी व्हाट कैन से प्लान काइंड ऑफ फेलियर एक्सपीरियंसेस। इफ नॉट समय पे आने वाले तो ठीक है, जब आएंगे तब पता नहीं आप कैसे फेस कर पाएंगे, बट यू कैन प्लान फॉर दैट वैक्सीनेशन, दैट इज व्हाट आई कैन यूज द वर्ड। आप वैक्सीनेट कर लीजिए खुद को जिंदगी भर के लिए, फेलियर के लिए आप फिर इम्यून हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी अपने आप ही, दिक्कत नहीं Interesting आएगी। idea. यस, Very interesting idea to have a vaccination before we actually get. यस, Thank you very much, sir. As the time is not permitting us, तो मैं और questions नहीं पूछ पा रही हूँ आपसे. ओके ओके, Thank you very much, parents, for being a part of today's webinar. And sir ने जैसे अपनी information share की, if you have any queries, you can ask him or mail it to us. We'll be forwarding it to him. श्योर श्योर श्योर। Good सभी को afternoon. बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को और पेरेंट्स को, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, और यू Thank you शुड very बी अ कंट्रीब्यूटर एंड गिवर। दुनिया आपका नाम लेके रहेगी, आप है तब भी, आप नहीं है तब भी, ऐसा कुछ करके दिखाइए। सो बेस्ट Thank ऑफ you लक। very much. Thank you very much, sir, हमारे सारे students के behalf पे. And श्योर, thank you, आपने आपका valuable time हमारे बच्चों के लिए निकाला. ओके, इसके लिए इट्स माय School of प्लेजर, Scholars डेफिनेटली। आपका बहुत बहुत thanks करता जी, है. श्योर श्योर। To all the parents and everyone watching us, we will be back next year with yet another webinar. Sorry, next week with yet another webinar. Till then, stay safe, stay healthy. Namaskar. नमस्कार। Live stream stop. ओके Thank you, sir. मैंने ओके लाइव बंद किया है Facebook का ओके। रिकॉर्ड.